પરિસ્થિતિમાં તમે કેવી રીતે અમારા પ્રશ્નોનો તમે જવાબ આપો છો, પ્રત્યુત્તર આપો છો? અમારી અલગ અલગ પરિસ્થિતિના પ્રશ્નોના તમે જવાબ છો એ આજે અમે જાણી શક્યા. અને પિતાજી, તમારી પાસે કૃપા માંગીએ છીએ કે આવતા સમયમાં જ્યારે અમે પોતાના જીવન વિશે વિચાર કરીએ, એ જીવનમાં જે પગલાં અમારે લેવાના છે એ વિશે વિચાર કરીએ, ત્યારે તમારા પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમે અમને સામર્થ્ય આપો કે અમે એ તમારા બતાવેલા જીવનમાં ચાલી શકીએ. નવીનભાઈ માટે આભાર માનીએ છીએ, તેઓએ જે સુંદર બાઇબલ સ્ટડી કરાવી તેના માટે આભાર માનીએ છીએ, અને તેઓના કાર્યને માટે અમે તમારી પાસે આશીષ માંગીએ છીએ કે તેઓના જીવનમાં, તેઓના કુટુંબમાં, તેઓના કાર્યમાં તમે તેમને આશીર્વાદ આપો અને તેમના દ્વારા તમારું નામ આનંદ અને પાવન કરો. જે ખોરાક અમારા કુટુંબોએ પ્રિપેર કર્યો છે તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. ખોરાક તમે આશીર્વાદિત કરો જ્યારે તમે અમે ભોજનને સ્વીકારીએ. પિતાજી, અમારું હૃદય તમારા તરફ આભારી હોય. અને પિતાજી, અમે જાણીએ છીએ કે મારી આજુબાજુ ઘણા બધા એવી વ્યક્તિઓ પણ છે કે જે જરૂરતમંદી છે. એવા જરૂરિયાતી લોકોને પણ પિતાજી અમે તમારા નામમાં મદદ કરી શકીએ એવી કૃપા થવા દો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા તારનારાયણ સ્વામી પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો સ્વીકાર કરો. आमेन. Alright, so we will break up now for. हमने बनाया है, हमने अपने लिए लिख के रखा है ये एक्शन प्लान हमारा एक करार है हमारे और खुदा के बीच. जब हम इसको दिल में सोच रहे थे, गॉड वाज हेल्पिंग अस. जब हम उसको when we were writing it, our action plan, God was helping us. जब हमने उसको लिख के रखा है, so it is only between me and my God. And that action plan is something which is for me. I have made it for myself. I have owned it. It is my plan. So, Psalms will always remind us of our plan that we have made for God. Now, Psalm इस भजन की पुस्तक में our recorder is here for this session. Let me introduce you. Her name is Mahima Glory. Yes. And she has a very good handwriting. Oh. उसने बोला है कि मेरी handwriting अच्छी है, मैं लिखूँ. Yes. बहुत अच्छी है. Mahima will help us in recording. So we are building a second line of leadership. After Tony Bhai, कौन लिखेगा? महिमा लिखेगी. साम को आप गुजराती में क्या बोलते हैं? गीत शास्त्र. कोई और भाषा में, मराठी में? जबूर. जबूर. मराठी? हिंदी में कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? भजन संहिता. In Tamil? What is the word for Psalms in Tamil? Sangeetam. 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 This, what does this mean? This means psalm, songs or music, sangeet, music. It could be any music. Secular. And how many psalms we have in the Bhajan Sangeeta? 150. But in Greek Bible we have 151 psalms. And these 150 psalms are believed to be collection of collections. There are smaller collections which are put together and now we have 150 psalms. That is why we call it as a collection of collections, because there are some psalms which are duplicates. आप अपना भजन की पुस्तक खोलिए. Psalm 14. Please write. Psalm 14 is equal to Psalm 53. Next time we
when you write Psalm, only PS will do. Okay? You don't have to write the full thing. Just P, capital and S, that is Psalms. So, let's see that. Psalm 14 and Psalm 53 are the same. Then, Psalm 40 verses 13 to 17. So you can write here, next line. Yeah. 40, just 40 in the corner, yeah. 40, 40. Psalm 40 verse 13 to 17. 17 is equal to Psalm 70, 1 to 5. Psalm 40, 13 to 17, 13, 1, 3, 13 to 17 is equal to Psalm 70, 1 to 5. Then Psalm 108 is same as Psalm 57, 7 to 11. तो ये चीज हमको बता रही है कि साम में डुप्लीकेशन है, कई साम एक साथ हैं जो कई बार आ गए। इसका मतलब है कि कई डिफरेंट कलेक्शन से एक साथ साम लाकर एक जगह बनाया गया। अब इसमें 150 साम्स में कौन कौन सी छोटे कलेक्शन हैं, छोटी किताबें हैं जो उसमें जोड़ी गई। सबसे बड़ा जो कलेक्शन है वो है साम्स ऑफ डेविड। The bigger collection that we have is called Psalms of David. So maybe we can write here from here Psalms of David. PS, only PS. Psalms of David ये सबसे बड़ा collection है। ये Psalms हैं 3 to 41, 3 to 41, 3 dash 41, then 51 to 72. Then 138 to 145. So these are the Psalms of David. इसमें ऊपर heading भी है कि ये Psalms of David. Let's open 1 and 2 and see. Psalm 3. Psalm 3. इसके हेडिंग में क्या लिखा है? दाऊद का गीत। दाऊद का गीत when he fled from Absalom his son। और ये ऐसा आता है अच्छा। सेकेंड कैटेगरी है Psalms of Solomon। सेकेंड कैटेगरी इज Psalms of Solomon। PS Psalms of Solomon, Psalm 72 and Psalm 127। 127। थर्ड कैटेगरी है Psalms of Korah। Psalms of Korah, 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 Psalms of Korah। तो यह है Psalms 42 to 49, 84, 85, 87, 88। ये सारे साम, ये सारे भजन कोराइट एक परिवार था जो लेवी फैमिली का एक परिवार था। ये उनके बच्चों ने ये गाने लिखे और उनका एक कलेक्शन है जो सामने जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कई एक कलेक्शन है जिनको सामने लिखा गया, जिनको सामने लाया गया। अब साम के ये जो सारे कलेक्शंस को एक साथ जोड़कर 150 साम्स बना दिए और अब इन 150 साम को उनको 5 किताबों में बांट दिया। Psalms are divided in 5 books। और मैं आपको बताऊंगा कि वो
कहाँ से कहाँ होता है। तो अगर इफ यू कैन राइट हियर बुक 1, सो साम इज डिवाइडेड इन 5 बुक्स। अच्छा, सवाल ये है कि 5 बुक में क्यों उसको डिवाइड किया गया? ये सोच के कि बुक ऑफ तोरा जो है उसके भी 5 पार्ट्स हैं, इसलिए साम्स को भी 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। साम 1 to 41 इज बुक नंबर 1 to 41। आप अगर बाइबल खोल के देखिए, साम 42 अगर खोलें आप तो उसके ऊपर आपको हेडिंग दिखेगा साम 42। साम 42 से बुक नंबर 2 शुरू हो रहा है। साम 42 to 72, 42 to 72। और जहां जहां ये खत्म हो गई बुक, वहां पर लास्ट वर्स में एक बेनेडिक्शन, और वो बेनेडिक्शन उसका साइन है कि यहाँ पर बुक अब खत्म होने जा रही है। तो साम 41 लास्ट वर्सेस, कोई इसको अगर देखें क्या लिखा है, साम 41 लास्ट वर्स, Blessed be the Lord, the God of Israel, from everlasting to everlasting. आमीन। तो ये उसका टर्मिनेशन पॉइंट है, पहली बुक यहाँ खत्म हो गई। सेकेंड बुक 42 to 72, थर्ड बुक 73 to 89, फोर्थ बुक 90 to 106, 90 to 106, and fifth book 107 to 150. Each book ends with a doxology. हर किताब का जो अंत है, हर खंड का जो अंत है, वो एक परिमल भाई डॉक्सोलॉजी को क्या बोलते हैं? प्रशंसा गीत, डॉक्सोलॉजी, सॉन्ग ऑफ प्रेज। हर पार्ट का एंड जो है, लास्ट वर्स एक डॉक्सोलॉजी, एक प्रशंसा प्रेज है, प्रभु की प्रशंसा है। और फिर साम 150 लास्ट साम is a doxology, is a praise for all the psalms. Psalm 150 is a praise song for whole collection of psalms. स्तुति doxology, वो जिसको कहते हैं हो सताइश बाप की और बेटे की और बुलबुलूस की, हो प्रशंसा पिता की, उसको उसका क्या नाम है? स्तोत्र। तो हर खंड स्तोत्र के साथ खत्म हो रहा है, और 150 साल वो पूरे भजन के लिए स्तुति। हाँ, अब साम्स के ऊपर एक हेडिंग है। हमारे 150 साम्स में से 116 साम पर एक एक हेडिंग पाई जाती है। और ये बड़े उसकी बात है कि ये हेडिंग्स यहाँ पर क्यों रखी गई, किस कारण से इन हेडिंग्स को यहाँ पर डाला गया। So 150 psalms have out of 150 psalms 116 psalms have a heading on top. कई बाइबल का ट्रांसलेशन जब किया गया इंग्लिश में हिब्रू से, तो कई लोगों ने इन हेडिंग्स को हटा दिया। एक ट्रांसलेशन है, उसका नाम है NEB, न्यू इंग्लिश बाइबल। उसमें ऊपर की हेडिंग उन्होंने हटा दी और हर भजन को जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा है। लेकिन नए नियम में जब इस भजन को कोट किया गया, तब उसकी हेडिंग के साथ कोट किया गया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह के समय में ये भजन में हेडिंग का महत्व था। मरकुस 12 और 35 पद में, मरकुस सुसमाचार 12 और 35 में, पेज 3, टॉप ऑफ द पेज 12-35 में भजन 110 को कोट किया गया, और उसने हेडिंग को भी कोट किया।
मरकुस 12:35 अगर कोई इसको देखिए, मार्क 12:35, मार्क 12:35, या 35, 36. हाँ, somebody is reading? पढ़िए. અને મંદિરમાં ભોગ કરતા ગીતે ઉત્તર આપીને કહ્યું, શાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે ખ્રિસ્ત દાઉદનો દીકરો છે, કેમ કે દાઉદે પોતે પવિત્ર આત્માથી કહ્યું કે પ્રભુએ મારા પ્રભુને કહ્યું કે તારા શત્રુઓને હું તારું પાડાશન કરું, ત્યાં સુધી તું ઇસ્રાએલ મને મારે. साम 110 को ये कोट किया गया है मरकुस में. तो साम 110 देखिए. દાઉદનું ગીત. और यहोवाए મારા પ્રભુને કહ્યું કે હું તારા શત્રુઓને તારું પાયાસન કરું ત્યાં સુધી તું મારે જમણે હાથે બેસ. तो जब मरकुस उसको कोट कर रहा है तो मरकुस उसकी हेडिंग को भी कोट कर रहा है कि दाऊद ने अपने भजन में ऐसा लिखा, और तब वो कह रहा है 110 का फर्स्ट वर्स, द लॉर्ड सेज टू माय लॉर्ड सिट एट माय राइट हैंड. तो ये हेडिंग्स जो हैं ये यीशु मसीह के समय में उसका मान्यता थी, उसको उसमें अर्थ था, उसको माना जाता था कि ये उसकी हेडिंग महत्वपूर्ण है उसके लिए. अब साम 57 देखिए, इसमें बताया गया है कि कितने टाइप की हेडिंग्स भजन में पाई जा रही है. भजन 57, साम 57. हाँ, क्या लिखा हुआ? हेडिंग. हाँ, મુખ્ય तो हेडिंग्स में हेडिंग्स ना, headings of psalm have three kinds of headings. पहली चीज जो हेडिंग बताई गई वो ये कि नंबर 1, द पर्सन, ये साम किसने लिखा है. हेडिंग में इसके बारे में बहुत चर्चा है. हेडिंग बताता है कि ये किसका साम है, किसने लिखा है, कंपोजर कौन है, एंड साम ये किसको बिलोंग करता है. जैसे साम ऑफ डेविड है, साम ऑफ सोलोमन है, साम ऑफ असाफ है, साम ऑफ कोरा है. पहले चीज. दूसरा चीज जो साम बताता है, साम की जो हेडिंग बताती है वो बताती है उसका, कैन यू राइट हियर, नंबर 2, हिस्टोरिकल सेटिंग. हिस्टोरिकल सेटिंग, ये साम किन परिस्थिति में, किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इस साम को लिखा गया. किसने लिखा, पहली बात. दूसरी बात, किन परिस्थिति में लिखा. जब वो दुश्मन से भाग रहा था, जब वो छुप रहा था, जब उसने पाप किया, जब उसने ईश्वर ने माफी दी, तो उसका समय बताता है कि ये गाना किस समय का गाना है. और तीसरा चीज जो हेडिंग बता रही है वो है कि म्यूजिकल नोट. थर्ड इज द म्यूजिकल नोट. तो साम 57 में ये तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं. अलग अलग साम में भजन में अलग अलग हेडिंग है, किसी में एक ही हेडिंग है, किसी में 2 चीजें हैं, लेकिन साम 57 में ये तीनों चीजें एक साथ. तीसरी चीज क्या है इसमें, म्यूजिकल नोट. गुजराती में कैसे लिखा है ऊपर नोट्स में हेडिंग, राग. ये मिक्ताम, दाऊद का मिक्ताम, उसमें क्या लिखा है, मिक्ताम का राग.
और डू नॉट डिस्ट्रॉय, अकॉर्डिंग टू डू नॉट डिस्ट्रॉय, डू नॉट डिस्ट्रॉय एक म्यूजिकल ट्यून है। एक मैं भी पूरा आपको लिस्ट बताता हूँ, ये जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं इनका डिटेल क्या क्या है। साम में की हेडिंग में ये 3 चीज़ें हैं। किसका साम है? दाऊद का साम है, सुलेमान का साम है, एथान का है, कोरा का है, अलग अलग लोगों का। फिर हिस्टोरिकल सेटिंग है, साम 3, साम 7, साम 18, 34, 51, इन सब में हिस्टोरिकल सेटिंग दी गई है। सो अगर आप उसको नोट करना चाहें तो, अन्यथा अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ चीज़ छूट रहा है तो चिंता मत कीजिए, ये नोट्स हैं, हम लोग आपको ईमेल में भेज देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, आप उसको देख लीजिएगा और ये नोट्स आपके पास होंगे। तो साम 3 में क्या है सिचुएशन, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये साम क्यों लिखा गया, कब लिखा गया। साम 3 हाँ बताइए क्यों, हिस्टोरिकल सेटिंग क्या है? પોતાના મિત્ર અબ્સાલોમની એ નાસી જવા વખતનું દાઉદનું ગીત. हाँ, साम नंबर 7 में, साम नंबर 7 શેગ્યોન જે તેણે બિન્યામીન કૂશના શબ્દો વિશે યુદ્ધની આગળ ગાયું. ऐसे समय में जब कूश उस आदमी से वो शायद परेशान था या क्या था, तो उसने साम 18 18 साम 18 या મુખ્ય ગવાઈયાને સારું યહોવાના સેવક દાઉદનું ગીત, જે દિવસે યહોવાએ તેને તેના સગળા શત્રુઓના હાથમાંથી તથા સાઉલના હાથમાંથી છોડાવ્યો તે દિવસે તેણે યહોવાને આ ગીતના વચન કહ્યા. हाँ, तो ये उसका ऐतिहासिक सिचुएशन। साम 51 मुख्य गवैयाने सारे दाऊद की 5 से दामने सामने गाया अच्छी तुमने 5 से नाचन प्रबोधक आगे उनके वक्त। तो ये भी लिखा है कि जब दाऊद ने पाप किया और उसको प्रॉफिट नेथन ने आके उसको रोका, और ये कहानी आपको मालूम होगी ना, 2 सैमुएल चैप्टर 13 में ये पूरा वृतांत है, ये कैसे कैसे क्या हुआ था। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो दाऊद के परिवार में हुआ। दाऊद ने दूसरे के परिवार में किया, 2 सैमुएल चैप्टर 11 में, फिर 2 सैमुएल चैप्टर 13 में दाऊद के खुद के परिवार में हुआ, जब तमार उसकी बेटी के साथ गलत काम हुआ, उसके अपने परिवार में, उसके अपने दूसरे लड़के। तो ये ऐतिहासिक सिचुएशन है जो उसमें बताया। अभी म्यूजिकल नोट्स है तीसरा चीज। म्यूजिकल नोट्स भी कई टाइप के। एक सबसे कॉमन जो म्यूजिकल नोट आता है इसमें भजन में बीच बीच में है, वो आपके कुछ अगर समझ में कुछ है, आपके याद में है तो कुछ बताइए कौन सा है जी? મુખ્ય ગવાઈયાને સારું. मुख्य गवैया सेला सेना। સેના. हाँ, ये सेना क्यों आता है? सेना का क्या मतलब? સ્ટોપ. सेला સ્ટોપ. हिब्रू भाषा में आपने डेड सी स्क्रॉल में भी जब देखा होगा, जब हम लोग गए थे देखने, काफी लोग हम लोग गए, तो उसमें भी हिब्रू भाषा में वॉवल्स नहीं, वो सिर्फ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। तो अगर सेला बोलेंगे तो हिब्रू में जब लिखेंगे तो उसको SLH इंग्लिश में, वो एक तो इस तरफ से लिखकर उधर जाएंगे, लेकिन ये SLH ऐसा होगा। लेकिन जो हिब्रू है आदमी वो जानेगा कि यहाँ पर ई लगेगा, यहाँ पर ओ लगेगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों अपने लैंग्वेज को, अपने कस्टम को, अपने ट्रेडिशन को सीक्रेट रखना चाह रहे थे, क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे? तो ये सेला है। सेला का 2 इंटरप्रिटेशन दिए गए हैं। पेज नंबर 4। सेला 71 टाइम भजन में यूज किया गया, 71 टाइम्स आया है।
और सेला इस शब्द का मतलब होता है, इसका जो रूट वर्ड है हिब्रू में, उसका मतलब होता है टू टर्न, टू बेंड, टू प्रे। SLH सेला, टू टर्न, टू बेंड, टू प्रे। इसका मतलब है जब गाना चल रहा है, जब गाना चलते चलते में जहां पर सेला आएगा वहां पर सबको रुक जाना है, रुक कर सबको टर्न होना है और प्रे करना है। तो ऐसा माना जाता है कि इट इज अ टाइम ऑफ अ इंटरल्यूड। भजन में जब सेला आया तब उस समय गाना अभी बंद होगा, अभी यहाँ पर कुछ और करना है। और वो कुछ और क्या है? या तो वो सब रुककर दुआ करने लगते हैं, और जब दुआ खत्म होती है फिर से गाने शुरू होता है। तो उसके रूट वर्ड के हिसाब से टू टर्न, टू बेंड एंड टू प्रे, जो बताता है कि गाने के साथ साथ आराधना, प्रेज एंड वर्शिप जैसा होता है, तो आराधना बीच में प्रार्थना होती है। कुछ अब एकेडमिक सर्कल है, स्कॉलर्स हैं, ओपिनियंस तो कई होती है। एक दूसरे स्कॉलर आए, उन्होंने कहा कि ये SLH ये है, लेकिन ये रूट वर्ड इसका है SLL, सल। ये सेला वर्ड है, लेकिन ये सेला नहीं है, ये SLL होना चाहिए। और SLL शब्द का मतलब होता है टू लिफ्ट अप, टू लिफ्ट अप योर वॉइस। कि जब सेला वर्ड आएगा तब गाने के बीच में सबको जोर से गाना, तब तक धीमे धीमे गाओ सब। और जब सेला आया तब सब जोर से गाओ, और उसमें जोर से बाजा भी बजाओ और सब गाओ। तो ये भी उनका ऐसा मानना है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा उपयुक्त दिख रहा है सेला, क्योंकि गाने के बीच में प्रार्थना करना एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये ज़्यादा फिट होता है इस बात इसके कि एकाएक सब लोग जोर से शोर करें तो वो उतना अच्छा आराधना के बीच में होती है सेला से ज़्यादा। दूसरा जो म्यूजिकल शब्द जिसके बारे में अभी कहा गया, टू द क्वायर मास्टर, गाने के क्या बोलते हैं, भजन के जो लीडर हैं उनके मुख्य गवैया के लिए वो लिखा गया। इसका मतलब है मंदिर में बहुत से मुख्य गवैया थे, उनकी क्वायर हुआ करती थी। और जब हम पहला राजा दूसरा राजा पढ़ते हैं, पहला क्रॉनिकल सेकंड क्रॉनिकल पढ़ते हैं, तो उसमें हमको कोरा का परिवार मिलता है जो इस गाने में वो लोग बड़े होशियार थे, वो गाना तैयार करके गाना गाते थे। और बहुत से उसमें अलग अलग म्यूजिकल नोट्स हैं, उसका लिस्ट है यहाँ पर। शिग्यून, विक्ताम, मशकील, और एक साम है जिसके ऊपर लिखा गया है, हेडिंग है लव सॉन्ग, साम 45। ये साम जरूर देखिए, साम 45 ये शादी का गीत है। वो अपने यहाँ अपने कल्चर में शादी में एक खास किस्म के गाने गाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मैं बताऊंगा, गुजराती में क्या कहते हैं, लग्न गीत। हमारे यहाँ उसको बोलते हैं बन्ना, बन्ने का गाना। शादी के समय जब शादी से दो तीन दिन पहले जब हल्दी वगैरह लगने लगती है, जब ये सब होता है, तो उसमें गाने होते हैं, ढोलक बजती है और पूरा लेडीज सब बैठती हैं और गाने होते हैं। और उसको बन्ना, हमारे बन्ने के गाने कहा है। और गुजराती में शायद होगा और खूब होती है, क्योंकि गुजराती कम्युनिटी इज अ सिंगिंग कम्युनिटी, इज अ डांसिंग कम्युनिटी। ऐसा हो नहीं सकता कि गाने नहीं गरबा होता है। तो वैसा एक गाना भजन संहिता में क्या है, साम 45। किसी आपको साम 45। तो पहला जो है आए उस दिन, शादी के दिन जो दूल्हा होता है, जो ग्रूम है, वो किंग होता है, उसको राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। उसको राजा की तरह उसको पगड़ी पहनाई जाती है, उसको घोड़े पे बैठता है, उसका यहाँ तलवार भी लगती है कई कल्चर में, और सब उसके पीछे होते हैं, वो प्रोसेशन में सबसे आगे होता है।
और वो ऊंचे पर होता है, वो जिधर चाहेगा वैसा चलेगा। तो ये शादी का गाना 45 में है। तो पहले पद में वो उसको कहा गया है कि ये शादी का गाना हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं। फिर 2 पद से और 9 कलम तक लड़के के लिए गाना, और 10 पद से 17 तक लड़की के लिए गाना। कुछ एक दो पद पढ़ के देखिए, पद 2, 3, 4 પદ 2 તું મનુષ્ય કરતા સુંદર છે, તારા હોઠો કૃપાથી ભરેલા છે, માટે દેવ સદાકાળ તને આશીર્વાદ દીધો છે. હે પરાક્રમી, તારી તલવાર તારી કમરબંધ, તારું ગૌરવ તથા તારો પ્રતાપ ધારણ કર. સત્ય, નમ્રતા તથા ન્યાયપણાના અર્થે તારા પ્રતાપે સવારી કરીને વિજયવંત થા. તારો જમણો હાથ તને ભયંકર કૃત્યો શીખવશે. तो उसके लिए ये आदमी के लिए प्रशंसा के गीत गाए जाएंगे, दूल्हे के लिए। और वर्ष 10 पढ़िए। હે દીકરી, સાંભળ, વિચાર કર અને કાન ધર. વળી તારા લોકને તથા તારા બાપના ઘરને ભૂલી જા. फिर आगे 11 पद। રાજા તારા સૌંદર્ય પર મોહિત થશે, તે તારો ધણી છે, માટે તું તેની સેવા ભક્તિ કર. વાહ बारह और 13 पद में क्या ભગવાન है? તેની પ્રશંસા કરો, એ તો એ કરો तो ભાગળ બંધ થઈ ગઈ ને સાચી વાત છે. તમારા કાકમાં ભાગળ નથી લાગતી, અમારે તો છે જ. तो ये सब ये शादी का एक गीत है जो भजन संग्रह में आया, भजन 45 में, और उसको जगह मिला, उसको स्थान मिला कि मैट्रिमनी, इसीलिए मैट्रिमनी को कहते हैं होली मैट्रिमनी। शादी को कहते हैं शुभ विवाह, पवित्र विवाह, क्योंकि ये इट इज गॉड्स डिजाइन, इट इज गॉड्स प्लान फॉर फैमिली टू बी मैरिड इन होली। तो एक ये भी है, तो मैंने कहा ये एक बार हमको जानना फर्क। फिर दूसरे म्यूजिकल नोट्स हैं फॉर द स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, Psalm 4, Psalm 6, 54 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हार्प होता है या गिटार होता है। फिर Psalm 4, Psalm 6 का, फिर फ्लूट है Psalm नंबर 5, और ऐसे अलग अलग म्यूजिकल नोट्स हैं जो उसमें दिए हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग को जानना जरूरी है वो है टाइप्स ऑफ साउंड। हमारे उसमें कितने टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं, साउंड के संग्रह में 150 साउंड्स में कितने अलग अलग टाइप के साउंड्स मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो साउंड है इसको एंड देन राइट साउंड ऑफ प्रेज। सबसे ज्यादा जो भजन संग्रह में जो साम है वो है साउंड ऑफ प्रेज, प्रशंसा के गीत, ईश्वर की स्तुति के गीत, और इनसे मिलकर ही इसी के नाम से भजन संग्रह का नाम पड़ा है कि ये भजन संहिता है, गीत शास्त्र है। साउंड ऑफ प्रेज के 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 इज इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में साम में कहा जाता है इन्विटेशन होता है, कम लेट अस प्रेज द लॉर्ड, आओ हम ईश्वर की उपासना करें। उसमें इंट्रोडक्शन में पीपल आर इनवाइटेड टू कम एंड प्रेज द लॉर्ड। I think women's group got the psalm of this 33। तो पहला उसमें इंट्रोडक्शन होता है, कम लेट अस प्रेज द लॉर्ड। सेकंड पार्ट, साम के सेकंड पार्ट में होता है व्हाई वी शुड प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज और फॉर
It gives a ground or reason for praising God. Why you should praise the Lord? Because God has done this. Because God is good. Because God is creator. Because God has liberated. Because God has supplied. Because God has forgiven. So first invitation, and then in the second part there are because. Or in Hebrew Bhasha, in Hebrew it is key. The sentence begins with key, because. It means for or because. Kyunki. और then it gives the whole reason in then इसमें यहाँ पर जुड़ता है a series of participles. Why you should praise the Lord? In the main section में ki in Hebrew or for, because, then participle. He is good. He is graceful. He is merciful. He is abounding in love. He is taking care of all your sin. He is washing you white. And so these are the participles. इंग्लिश ग्रामर में भी अगर आप पार्टिसिपल को जानते हो तो आपको पता होगा कि पार्टिसिपल हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में होता है और वो पास्ट और फ्यूचर में नहीं होता बल्कि विच कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट एंड कंटिन्यूज इनटू द फ्यूचर तो वो पार्टिसिपल में लिखा जाता है और फिर फाइनली देयर इज अ कंक्लूजन सो पार्ट 1 पार्ट 2 एंड देन पार्ट 3 इज द कंक्लूजन. And again, once again, the praise of God is expressed. So this is one kind of psalms that we have. There is a whole list of these psalms. Can you write these numbers? Psalm 29, 30, 33, 34, 41, 66 to 68. Right? She's hearing here and writing there. If Tony Bhai had to stop us, hold on. So, but see, the children are much more brilliant than us. Great. And then 75, 92, 100, 103, 105. Maybe the whole list will email it to you. It goes up to 150 psalms, lot of psalms. So this is one category of psalms which has given the name to this whole collection of psalms. Can you rub it off, please? Now we move to the second category types of psalm, and that is called as psalms of lament. Psalms of plea, psalms of prayer, psalms of cry, psalms of technical language. It is called as psalms of lament. Mahima, if you want to change the color of the pen also, you are free. If it is working okay, do it. Psalms of lament. Where did you learn the spelling of lament? No. What is the meaning of lament? Asking for something. It is a lament means a song of cry for help. Very good, very good. It's a cry for help. This is very crucial. Psalms have, book of Psalm have many laments. Cry for help, cry for help. God help me, God help my country, God help my people in the situation. Many psalms are there. But another word for this could be mourning. No? But there is a
will see in the Psalm of 11, there is a difference in Christian mourning and the mourning which outside people. In every culture there is a song of mourning. जब किसी के परिवार में डेथ होती है तो गांव में कुछ लोगों को आते हैं गाना गाने, हाँ रुदाली आते हैं राजस्थान में, और कुछ आंटी लोग होती हैं या कुछ दादी लोग होती हैं, वो बड़ी एक्सपर्ट होती है रोने में। आप उनको बस बता दो कि रोना है, वो रोएंगे, बाद में पूछेंगे कारण क्या है। अरे बात तो बताओ, रोना क्यों, बस आप रो, आप दिल खोल के रो। हमारे घर में तो ऐसा है कि पूरी कॉलोनी में कोई भी कहीं भी सफर में जा रहा होगा, हमारी वाइफ को रोना है। मैं कहता हूँ तुम्हें क्या रोना है, उसके घर में जा रहा है, नहीं वो सब रो रहे हैं, हमें तो शायद ये फर्क है, जेंडर का भी फर्क है। हम लोग थोड़ा देर से रोते हैं लेकिन अंदर रोते हैं, और शायद वुमेन ज़्यादा रोती है और बाहर रोते हैं, लेकिन फिर 15 मिनट बाद सब ठीक हो जाता है। तो mourning is a essential part of human life, और हर कल्चर में, हर कम्युनिटी में, हर फेथ ग्रुप में mourning के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि mourning is important. This expression of grief is very important. अगर उसको एक्सप्रेस नहीं किया, उसको अंदर रखा, तब बीमार पड़ा, उससे लोग अपने को नुकसान करेंगे, अपने तकलीफ हो जाएगी। इसलिए mourning must be allowed. There must be a, उनको परमिशन होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए कि अब आप रो लो जितना हो। और इसीलिए अगर कभी डेथ होती है परिवार में या किसी दुख है, तो मौका मिलना चाहिए कि आप रो, जितना आपको दुख है आप बोलो। और भजन हमको ये बताता है कि भजन में दाऊद राजा और दूसरे लोगों ने जिन्होंने भजन लिखा, वो प्रभु के सामने एकदम उन्होंने अपने आप को खोल दिया, अपने हृदय को खोल दिया, रोए, चिल्लाए। अय्यूब की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ताजुब होगा, वो इतना he was like opening up his whole heart and saying, God, this is happening with me, ये मेरी स्थिति है, ये मेरी दशा है, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कीजिए। तो mourning is an important aspect in the Psalms of Lament. इसका इंट्रोडक्शन है, पार्ट 1 इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इन्वोकेशन टू गॉड और क्राई फॉर हेल्प, प्रभु जी मैं आपसे मदद मांगता हूँ। Psalm 5, Psalm 6, Psalm 5 देखिए। Psalm 5 verse 1. Invocation of God and a cry for help. Psalm 5:1, Psalm 6:1. O Lord, do not rebuke me in your anger, or discipline me in your wrath. तो प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु को बुलाते हैं कि प्रभु जी आप आके हमारे इस दुख में हमारी मदद करें। फिर उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन, दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसफॉर्चून, डिटेल ऑफ डिस्ट्रेस, सफरिंग, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा प्रभु के सामने खोल देते। Psalm 22, 6 to 18. Psalm 22, 6. किसी कोई पढ़े? कौन हमको मात्र कीड़ों से मानव से शिक्षा मांगेलो અને લોકોથી ખુશ કરાયેલો। Verse 7. जो મને જુએ છે તે બધા મારી હાંસી કરે છે, તેઓ મોં મરડીને અને રોકું જોડાવીને કહે છે। सब मेरा मजाक बनाते हैं, सब मुझे देखकर हंस रहे हैं, सब
मेरे लिए मुझ जवाब है मुझे। तो एकदम खुल के पूरा डिस्क्रिप्शन बताता गया, लंबा और सबसे बड़ा पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिसफॉर्चून और डिस्ट्रेस। इस सेकंड पार्ट में डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसफॉर्चून और डिस्ट्रेस के साथ साथ क्राई फॉर हेल्प भी होती है। इसमें नेक्स्ट सेक्शन होता है क्राई फॉर हेल्प। और फिर उसके बाद क्राई फॉर हेल्प के बाद रीजन फॉर अपीलिंग टू गॉड। व्हाई आई एम अपीलिंग टू यू गॉड, व्हाट इज माय रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग, व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग। और वो रिक्वेस्ट है बिकॉज ऑफ योर नेचर, यू आर अ गॉड हु केयर्स, यू आर अ गॉड हु फॉरगिव्स। सो साम का लिखने वाला उसने अपना दिल को खोल के देखा कि प्रभु जी मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि आप ही वो जो मेरी मदद करने में सक्षम हो, आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो रीजन फॉर सीकिंग हेल्प इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, और सेकंड बिकॉज ऑफ द ऑनर ऑफ गॉड। प्रभु जी अपने नाम के निमित्त मेरी रक्षा करो, अपने नाम की को इज्जत देने के लिए, ऑनर ऑफ गॉड, आप मेरी मदद कीजिए। इसमें कभी कभी कन्फेशन ऑफ सिंस भी आता है। नेक्स्ट इन दिस इज कन्फेशन ऑफ सिन, कि मैंने ये पाप किया है, मेरे पाप को माफ कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। अगर कन्फेशन ऑफ सिन नहीं होगा तब उसका ऑपोजिट में क्लेम ऑफ इनोसेंस होगा कि मैं तो निर्दोष हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कई बार भजन के लिखने वाले इस अनुभव से भी गुजरे जब उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया था, लेकिन दुनिया उनको बोल रही थी कि आप गलत हो, आपने गलत कहा। तो क्लेम ऑफ इनोसेंस, Psalm 59 verse 3। और अय्यूब की कहानी में तो हमें मालूम है कि बहुत लंबे समय तक वो कहता रहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। Psalm 59 verse 3। कोई पढ़ते हैं? એવો મારા પ્રાણ જેવા સંતાઈ રહે છે, પરાક્રમીઓ મારી સામે નિષ્ઠા થયા છે। હે યહોવા, મારા ઉલ્લંઘન કે મારા પાપને લીધે આ થાય છે એમ નથી। Verse 4। મારો કંઈ પણ દોષ હોવા ન છતાં તેઓ બહોળી આવીને તૈયારી કરે છે। મને સહાય કરવાની જાણ અને જો। मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन तो भी मेरे साथ ऐसा हुआ। और इसका लास्ट पार्ट ऑफ दिस साम कंक्लूजन है लेमेंट। और ये जो मॉर्निंग का जो गाना है, हमेशा इसका एंड होता है थैंक्सगिविंग। और ये सबसे रिमार्केबल क्रिश्चियन बात है। ये साम, ये भजन मसीही भजन इस मारे हैं क्योंकि ये कंक्लूजन इसका एक थैंक्सगिविंग, एक अश्योरेंस ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। ये भजन हमेशा खत्म होते हैं जहां पर प्रभु की मदद का श्योरिटी, a transition from cry for help into thanksgiving। अभी तक पूरे में जो व्यक्ति गाना लिख रहा था, कह रहा था प्रभु मेरी मदद करो, मैं परेशान हूँ, मेरा ये हो रहा है, दुश्मन मुझे कर रहे हैं, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब अंत में आता है तो उसके हृदय से निकलता है धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मेरा भरोसा है कि मेरी प्रार्थना को प्रभु आपने सुना है। तो क्रिश्चियन मॉर्निंग इज नॉट विदाउट होप। क्रिश्चियन मॉर्निंग, मसीही दुख मनाना, मसीही सफरिंग, मसीही कष्ट जो है, इट ऑलवेज एंड्स ऑन, मॉर्निंग एंड्स ऑन होप। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिश्चियन। तो हम लोग को अलाउ है कि हम मॉर्निंग करें,
प्रभु ने कहा है कि अगर आपको दुख है तो आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में बोलो, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो आपको, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करो, और अंत में उसके होगा। तो हमारा गाना ऐसा नहीं है जैसा कि उर्दू पोइट्री है। उर्दू पोइट्री क्या है, उसमें ये मॉर्निंग होती है, ये हो गया, वो हो गया, दिल टूट गया, बर्बाद हो गए, बाल गिर गए, बुढ़े हो गए, चांद नहीं दिख रहा है, तारे नहीं दिख रहे हैं, अंधेरा हो गया है। उर्दू पोइट्री खूब लिखते हैं और वहीं पर खत्म है गाना। अब गाना इस पर कैसे आएगा? ये मसीही भजन है। उर्दू शायरी, उर्दू पोइट्री वो इसी पर है। कितने कितने उर्दू शायर हुए, उन्होंने ये लिखा, दुख मनाते रह गए। उर्दू शायरी, उर्दू जब ये यहाँ तक कि गज़ल भी जब गाई जाते हैं, गज़ल गाते हैं तो हमेशा गज़ल में ये दुख दुख रहता है। मसीही गाने में दुख के बाद हर्ष, सुकून, हर्ष, सुकून है, हर्ष है, जॉय है, एश्योरेंस है, ट्रस्ट है कि मेरी प्रार्थना, मेरे दुख को मेरे प्रभु ने सुना है, उसका जवाब। तो वी आर अलाउड टू मोर्न, वी आर अलाउड टू सेलिब्रेट गुड फ्राइडे, लेकिन गुड फ्राइडे खत्म नहीं है जब तक कि ईस्टर ना आए। और वो 40 दिन का लेंट है और गुड फ्राइडे है, ये सारा समय दुख का, सफरिंग, लेकिन द कल्मिनेशन पॉइंट इज ईस्टर, विक्ट्री, होप, न्यू लाइफ, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, इटर्नल लाइफ। तो ये भजन हमको ये संदेश बता रहे हैं कि Psalms of Lament always will end in a thanksgiving and on a trust. इसके अलावा ये इंडिविजुअल भी है Psalm of Lament, और Psalm of Lament है नेशन के लिए। जब देश के ऊपर अकाल पड़ा, लड़ाई हुई, हार गए, डिफीट, डिजास्टर, एपिडेमिक, ड्रॉट, इन सब के लिए भी भजन गाए गए, Psalm of Lament है, जिनके पूरे एक लिस्ट है हमारे पास। Psalm 12, Psalm 14, Psalm 44, 53, 58, 60, ये सारे कम्युनिटी लेवल्स हैं। नेशन, the whole nation is singing, whole nation is fasting and praying। जैसे 1 Kings chapter 8 में है कि पूरे देश को बोला गया कि सब लोग दुख मनाओ, सब लोग राख पर बैठो, टाट पर बैठो, राख पे सर पे डालो और दुख करो, क्योंकि पूरे देश के ऊपर विपदा आई। फिर इसके बाद Psalm of Lament के बाद इंडिविजुअल Psalm और नेशनल Psalm में फिर थर्ड कैटेगरी है Psalm of Trust and Confidence। Psalm of Trust and Confidence है कि Psalm नंबर 23, सबसे सुंदर Psalm, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का Psalm है Psalm 23। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। सो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इज एक्सप्रेस ऑफ गॉड, कि मेरी हर सिचुएशन में, मेरी हर दशा में उसके भी लंबी लिस्ट है। Psalm 4, Psalm 11, Psalm 16, Psalm 23, Psalm 27, Psalm 62, right? 3. Then after that we have another category, Psalms of God's kinship. Group number 2 was studying that Psalm, Psalms of God's kinship, where जहाँ पर कि भजन का लिखने वाला बोल रहा है कि पूरी सृष्टि के मालिक आप हो, पूरी सृष्टि के राजा आप हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। और ये भजन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसे भजन नहीं होगा, अगर ऐसा विचार नहीं होगा, तब हम क्या सोचेंगे कि ईश्वर जो है वो सिर्फ मसीही लोग हैं। वो जो पानी बरसाता है तो वो सिर्फ मसीही के ऊपर बरसाता है, वो सिर्फ एक जाति का परमेश्वर है, वो सिर्फ एक ग्रुप का परमेश्वर है।
लेकिन जब हम कहते हैं सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, जब भजन का लिखने वाला कहता है कि गॉड इज द गॉड ऑफ होल नेचर, ऑल द हिस्ट्रीज ऑफ एवरीबॉडी, दैट मीन्स गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीबॉडी। मेरी और भी भीड़ है जो इस भेड़शाला की है, लेकिन मुझे उनका भी यहाँ लाना जरूरी है। वो अलग दूसरे भेड़शाला में, वो दूसरे ग्रुप में, वो दूसरी जगह में है, लेकिन उनको भी मुझे लाना। लेकिन वो चाहे जहाँ है, लेकिन वो मेरी भीड़ है, वो मेरे लोग हैं, मैंने उनको बताया है, मैं उनकी देखभाल करता हूँ। मैं अपनी वर्षा अच्छे लोगों पर भी और बुरे लोगों पर, सबके बरसाता हूँ। हाँ, ये बात है कि वो समझते नहीं, लेकिन एक दिन वो जानेंगे, वो समझेंगे। फिर साम है, साम विजडम साम है, साम नंबर 1, What is the Psalms of God's kingship. God's kingship. God is the king of the God's kingship. What did you write? Friendship. Friendship is over 14th February. Yeah, friendship. Then next is wisdom psalms. Psalms of wisdom. हम में से कितनों को याद है साम नंबर 1? क्या है साम नंबर 1? हाँ, ये साम को बोलते हैं साम ऑफ विजडम। इसमें हमेशा कंपैरिजन है, दुष्टों की संगति और अच्छे लोगों की संगति, दुष्टों का मार्ग, अच्छे लोगों का मार्ग। और साम ऑफ विजडम में हमेशा वर्ड रहता है ब्लेस्ड। ब्लेस्ड आर यू, धन्य है वे जो ऐसा करते हैं, धन्य है वे जो ऐसा करते हैं। Psalm of wisdom, Psalm 1, Psalm 32, Psalm 37, Psalm 119, सबसे लंबा साम ये विजडम का साम। देन इसके अलावा एक और कैटेगरी है साम ऑफ असेंट। साम ऑफ असेंट, ASSCENT, Psalm of Ascent। ये वो साम है जो जब यहूदी लोग अपने अपने गांवों से निकलकर जेरूसलम आते थे, तो जेरूसलम ऊंचे थे, पहाड़ थे, और जेरूसलम का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है ज़ायन, वहाँ पर मंदिर बनाया था। तो जब वो सब तीर्थयात्री लोग ग्रुप बनाकर आते थे, तो आते में और वहाँ तक जाते में वो गाना गाते थे। वो भजन है इसमें, जिनको कहा जाता है साम्स ऑफ असेंट, वो तीर्थयात्रियों के गाने। और उन गानों में बड़ी सुंदरता है। पहली लाइन अलग है, बदलती जाती है, और लेकिन दूसरी लाइन हमेशा एक जैसी है। साम 136 देखें, साम 136, Psalm 136, 136, Psalm 136. કેમ કે તેની કૃપા અનંતકાળ છે. Psalm 136, verse 1. यहोवाની સ્તુતિ કરો કેમ કે તે ઉત્તમ છે. हाँ, તેની કૃપા અનંતકાળ ટકનાર છે. तने कृपा अनंत काल तक टकनार छे। ये फ्रेज है जो ग्रुप रिस्पॉन्स करता है, और ये लगातार ऐसा चलता जाएगा। तो लीडर पहले बोलता था आगे, हाँ, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। तो रिस्पॉन्स होता था फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, कि वो जवाब देता था हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। अब जैसे तीर्थ यात्रा होती है, लोग जाते हैं, हमारे देश में दूसरे धर्म के लोग हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उनके यहाँ भी ऐसे गाने होते हैं, वो भी ऐसे करते जाते हैं। जब वो वैष्णो देवी वाले जाते हैं, प्रेम से बोलो जय माता, सारे बोलो जय माता, बच्चे बोलो जय। हमारे पड़ोसी चले गए, तो जब वो वहाँ से लौट कर आए तो बड़े चार्ज अप थे,
ये पूरा ये वैष्णो देवी का ये पूरा ये बाल की पट्टी वट्टी हाथ में भी वो घर में भी बांधे रहते थे बैठे, और दे ऑल आल्सो चार्ज्ड अप विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ तीर्थ यात्रा। घर में चलता रहता था, कभी वो बच्चों का नाम मोनू बोले तो वो टुट्टू बोले, जय माता। तो ये कुछ 136 Psalm 136 वैसा Psalm of Ascent। जब गाना गाते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें तीर्थयात्रियों को जोश के साथ जाते जाते वो भजन के ईश्वर के समीप का। Psalm 15, Psalm 24, Psalm 120 to 136, इसमें हेडिंग है। Psalm 120 की हेडिंग देखिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? चढ़ाई कर, चढ़ाई कर, असेंट, Psalm of Ascent। और यरूशलेम भी ऊंचे पर था, जूडिया हिल्स है उसके, और उसका भी सबसे जो ऊंचा हिस्सा है सिटी ऑफ डेविड, जो जाइन है, वहाँ पर ये टेम्पल है, और उस टेम्पल में ये सब लोग जाते हैं। साल में 3 बार जाना जरूरी था, ऐसा लिखा गया था, सबको वहाँ जाना है। तो साल में 3 बार वो तीर्थ यात्रा बना के पूरा गाँव तैयारी करते हैं। फिर इसके बाद कुछ और भी साम है, Psalm of Creation है, Psalm 8, Psalm 19, Psalm 65, और फिर कुछ साम है, Psalms of Prophetic Warning। तो ये एक छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू है पूरे साम्स के बारे में कि भजन संहिता में, भजन संग्रह में किस टाइप के साम्स हैं, और ये हमारे शेयरिंग है, ये हमारे बताया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं आपको कि आप एक इसकी स्टडी पर निकलिए, एक पिलग्रिमेज पर निकलिए, पिलग्रिमेज ऑफ स्टडीइंग द साम्स। This morning what we have done together is a kind of a whetting our appetite for psalms। हमने खुद पढ़ के देखा, हमने खुद उसको समझ के देखा, हमने खुद उसका स्ट्रक्चर बनाया, हमने खुद उसमें से देखा ईश्वर क्या बोल रहा है, हमने खुद उसमें से देखा कि ईश्वर हमारे लिए क्या संदेश दे। तो एक तरीके से इसका आइडिया था कि हम लोग थोड़े इनकरेज हों, थोड़े इंस्पायर हों, और इस भजन की पुस्तक को पढ़ें, ऐसा फैमिली टुगेदर, एक परिवार साथ में बैठकर, और रोज एक एक भजन में या एक सप्ताह में एक भजन में, और धीमे 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 इसको पढ़ते जाएं, और इससे ईश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। भजन के लिखने वालों ने वो चीज लिखी है जो किसी और तरीके से नहीं बताई जा सकती। 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है प्रोज। प्रोज को लिखने की एक लिमिटेशन है, प्रोज में जो लिखा जाएगा, जो कहा जाएगा, उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन जब कवि या भजन लिखने वाला उसको बोलेगा, लिखेगा, तब उसके तो उसमें तो क्या हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस सारे आ सकते हैं, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन, सब कुछ हो सकता है उसमें। और वो उसमें वो टाइटल्स हैं, उसमें वो अलंकार हैं, उसमें वो शब्द हैं प्रभु के लिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, Psalm 23। Psalm 24, प्रभु मेरा राजा है। तो एक चरवाहा कहाँ है और एक राजा कहाँ है? लेकिन एक भेड़ के लिए एक चरवाहा और एक प्रजा के लिए एक राजा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ईश्वर में विश्वास के, ये गाने नहीं आ सकते, और इसीलिए भजन पे बड़ी आवश्यकता है। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ भजन खाना खा रहे थे गतसमनी के बाद में, खाना खाने के बाद लिखा है, वो ऊपर की अटारी में जो लास्ट सफर उन्होंने किया थर्सडे के दिन, फिर उसके बाद वो कहाँ गए? गतसमनी गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने गीत गाया। They sang hymns and they went forth। तो उस समय उन्होंने, मतलब यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब रहते थे तो ये इनका इस्तेमाल करते थे, इन भजन को गाते थे। नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जब लोगों को पता था कि they are going to be killed, उनको ऐसा ही रूम में अंदर भेज दिया गया। अब उनसे कहा गया कि दीवार पर किनारे किनारे वो लगे थे फॉसेट्स, जिसमें उससे पानी आता है नहाने के लिए। जर्मन सोल्जर्स ने कहा कि आप लोग गंदे हो, आपको नहाना है,
अपने कपड़े उतारो, किनारे रखो सब, कपड़े उतारो, जूते उतारो, सब उतारो, और सब ये जो नल है, नल के पास खड़े हो जाओ सब। दरवाजा बंद हो गया, खिड़कियां बंद हो गई, और फिर नल जब खुले, बाहर से उन्होंने जब नल खोला तो उस फॉसेट में से पानी की जगह क्या है? गैस आया, कलरलेस, नॉइसलेस गैस, स्मेललेस गैस। और जब वो मर गए, सबको बटोर के ट्रक में लादा, दूसरे ग्रुप को ले गए। वैसे समय में जब वो वहां खड़े थे, तब उन्होंने ये तब उन्होंने वहां खड़े होकर बोला, लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life। लेकिन वो लाइफ कितने थी? 5 seconds, 10 seconds, but even for that 10 seconds life, surely goodness and mercy shall follow me। So these psalms, when we hold in our hands and we want to read it, you must remember all those Jews who died. You must remember all those people who held these psalms to their hearts and lived their life when things were tough, when things were। एक लेडी थी, उनके हस्बैंड आर्मी में थे, आर्मी में उनके वो शहीद हो गए, उनके 2 लड़के भी आर्मी में थे। खबर आई कि वो दोनों लड़के मर गए, डेथ हो गई। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया, बेडरूम में और कमरे बंद कर दिए, और बाहर सारे लोग जमा हो गए। पास्टर साहब को बुलाया, पास्टर साहब आप आइए, वो किसी से बात नहीं कर रहे थे, क्या कहें। पास्टर आए, अब पास्टर के पास में कोई शब्द नहीं है कि कैसे सांत्वना दें, क्या बोले उनको। बहन ऐसा होता है, ऐसा कैसे बोले, ऐसा होता है। उसके तो उसके हस्बैंड भी चले गए, उसके 2 बच्चे भी चले गए। अभी हम आपसे कहें भाई ऐसा होता है, ऐसा कैसे होता है, ये तो बड़ा सीरियस मैटर है। तब पादरी साहब जब अंदर आए तो उनको कुछ नहीं समझ में आया कि मैं इससे क्या बोलूं। वो उस लेडी के पास खड़े हुए और कहने लगे, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट, ही मेक्स मी टू लाई डाउन इन ग्रीन पास्चर्स, ही लीड्स मी बिसाइड स्टिल waters। That lady began to recite that psalm along with the pastor। और उनको भी बचपन से याद था वो psalm, हम सबों को याद है। When I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil, because you are with me. Thy rod and thy staff they comfort me। और तब वो लेडी रोने लगी जोर से, तब उनका ग्रीफ, उनका मॉर्निंग बाहर निकला। That is how she could be healed. That is how she could overcome that, by the help of this psalm। तो ये जो भजन संग्रह है, ये बहुत अमूल्य चीज है जो प्रभु ने हमारे हाथ में दी। इसकी ताकत, इसकी चंगाई, इसकी ब्लेसिंग हमारे जीवन में और पूरी से आएगी जब हम इसको मिलके पढ़ना शुरू करें। तो मेरा आपको न्योता है, आपको इन्विटेशन है, आपको कॉल है कि स्टार्ट ऑन दिस स्टडी, स्टार्ट ऑन दिस पिलग्रिमेज विथ योर फैमिली, एंड यू विल सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड फ्रॉम योर लाइफ। I think this is where we will end. Can we read that psalm? And can you read that psalm loudly? Yes. I think this is one gift that God has given us. પ્રભુએ આપણને આ વચન આપ્યું છે ને, ઘણી વખત આપણે વચનને વાંચીએ છીએ, પણ એ વચન આપણે બહુ મોનોટોનસ વાંચીએ છીએ અથવા તો બહુ ધીરું વાંચીએ છીએ ને। કોઈ વખત આપણને કહે કે આગળ આગળ વચન વાંચજો ને, સ્ક્રિપ્ચર રીડ કરજો, તો આપણે પછી બહુ ધીરું કરીએ છીએ। જોરથી એને કહીએ અને બહુ ભાવ સાથે આપણે કહીએ। સાથે કરીશું 5 મિનિટ ગીત શાસ્ત્ર 23 બહુ જોરથી વાંચીશું અને ભાવથી વાંચીશું, કે ભાવપૂર્વક વાંચીએ। Then I will close, okay? All right. Okay. ગીત શાસ્ત્ર 23 યહોવા મારો બાળક છે, તેથી મને કશી ખોટ થશે નહીં। તેની કૃપામાં મને સુવાડે છે, નિશાન પાણી પાસે મને દોરી જાય છે। તે મારા આત્માને તાજો કરે છે, પોતાના નામની ખાતર મને ન્યાયપાલનના માર્ગે ચલાવે છે। જો કે મને વિચારની કૃપામાં ચાલુ
ખૂબ આભાર માનીએ. Thank you very much. Please take our greetings, our thanks to you, to your family, and go remember us to your family. From all of us here, I want to thank you so much. You prepared and you came here, you did your research, you shared some of that for us. I think the beauty of what you did was that the church is involved in it, people are involved in it. Right? I think that was your gift to us. I also want to thank Tony Bhai, Sunita Ben so much for the arrangements you made, papers you bought and all of this, and food Sunita Ben prepared. So thank you so very much. We sometimes come and enjoy things and we feel happy, okay, we have enjoyed so much. But behind that enjoyment, there's a lot of preparation and also a lot of sacrifices that go on. So we want to thank you so very much, Tony and Sunita, for the work that you did. And this seminar would not be a seminar if you are not there. So every participant here, everyone who came here, sat down through this period, thank you that you spared your time and you came here to learn. You showed that the willingness to learn, and thank you so very much that you are here. So I want to thank all of you. I want to thank God that God made it possible for us to have this seminar, and we hope that next time in future we will have one more seminar where Dr. Dasan will be present. He knows so much about Gujarat, church history of Gujarat, mission work in Gujarat, the way people work in Gujarat, and we are sure that he will share some of that wisdom with us, some of that treasure that he will share with us. Okay, so we will, on our behalf, all of us, maybe we'll give a big hand to before Marana comes, Tony, why don't you come and say something on our behalf, and maybe you want to offer a word of prayer for Dr. Navindra, and then we'll ask Dr. Navindra to close with a word of prayer. Come. Before we talk about Navid Bhai, how about an applause for Mahima and Asna here, and Sushma over there. She's writing it by heart here in the Psalm 23, which I think we should all learn and keep it at our tip of our tongues. So I just want to most importantly praise God that He's given us His Word. What an awesome, that's a treasure for us. So we should not take it lightly. I think that's one thing I kept thinking. Bible said, whatever. Meaning, I think what today, if anything, it taught us is read it with meaning. What it means, when it was written, who wrote it, what circumstances, and then find out if you are in that circumstance and how that talks to you. So this is like the kind of the Bible study that happened today. And the expertise was, of course, brought to us by Dr. Naveen Rao. What an awesome. And the interesting thing is, sitting for 4 hours or whatever the time it is, we didn't feel that. He made it interesting. Humor, right? I think every so often we're laughing and while we're learning. It's the best kind of learning. It's with a sense of humor in there. So making it interesting yet applicable. So thank you very, very much. And may God just continue to use you when you go back, and may He lead your ways, make them safe and open and wide and fruitful. And in His time and His plan, if we get a chance, we'd love to see you again. So when you come again, or if anybody goes to India, maybe, I think that's a place worth visiting. Sunita's known a little bit about it, but I've heard from these folks that beautiful place. So I'm sure we have a place to visit, So hopefully God leads us, and we can meet again. So let us pray and praise God. Thank you, Heavenly Father, for this time, for this day. Normally we think Sunday is the day of the Lord. But these people here who came today and dedicated their time, made Saturday this day for you. They put aside the worldly schedules, they put aside all their plans, they put aside the chores,
They put aside anything else that the world had to offer today. But yet, in the plan of God, yet in this perfect plan that you have for us, you guided them and brought them here. So I just want to thank each and everyone sitting here, those who have also come and gone, Lord, all of those. We also pray for those who were not able to come for any reason. Lord, hopefully the recording we did, hopefully the notes that Naveen Bhai is going to share with us may also reach more people, and that more people will know about this topic that we were able to learn today. So we thank you again, Lord. Bless each one of us as we break for a little bit. And Lord, for whoever is able to stay, we have this worship service that we want to join in. A live band and lively music. And even in that, as Naveen Bhai brings message, I pray, Lord, that he reaches out to the people from American Church here, and those of us who are able to attend, Lord, that there will be more to learn about you. So thank you for all these things, and we just, with the grateful hearts, Lord, all we can say is, let it be, Lord, that you are our shepherd. Let us, as your sheep, never hear any other voice, not look anywhere else, not go into the green pastures that the world may have to offer, but we would just be in your presence. Never cast us away from your presence, Lord, we just pray. So thank you again, and in the name of Jesus Christ, our Savior, we ask all this. Amen. प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हम पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके दासों के लिए जिन्होंने इन गीतों को लिखा, उनको भजन संग्रह में रखा गया। आपके दास दाऊद के लिए, सुलेमान के लिए और दूसरे भजन के लिखने वालों के लिए, प्रभु जी जिन्होंने आपकी आत्मा की अगुवाई से इन भजनों को लिखा, और जो आज हमारे पास हैं, जो हमें आशीष देते हैं, जो हमें नया बल और नया बुद्धि देते हैं, जो हमारे खुशी में हमारे लिए एक साधन है और हमारे दुख में भी हमारे लिए साधन है, जो हमें पल देते हैं। प्रभु जी होने दीजिए कि इन भजनों का हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, उनसे हम आशीष पाएँ और नया ज्ञान और नई सामर्थ्य पाके अपने जीवन को चलाएं, ताकि आपके नाम को मिले। प्रभु जी चर्च ऑफ इंडिया को आपके चरणों में रखते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना है कि इस कलीसिया के ऊपर आपका आशीष हो। पादरी साहब परिमल भाई के लिए प्रार्थना है, इसके उनकी सेवकाई पर, उनकी मिनिस्ट्री पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, उनको बल बुद्धि ज्ञान दें, उनको अपने दर्शन दें, ताकि प्रभु जी ये कलीसिया आपके लिए और बड़े बड़े काम करे, आपके लिए और आगे बढ़े, उन्नति करे और आपके लिए एक मजबूत गवाह बन सके। प्रभु जी इस कलीसिया के एक एक सदस्य के ऊपर आपकी आशीष हो, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, उनकी हर एक आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरा करें, उनकी कमी घटी में प्रभु जी आप उनकी मददगार हमें दीजिए कि ये कलीसिया आपको जो प्यार करती है प्रभु जी, वो हर एक किस्म से उन्नति करे और वो आपने खुश पाए। ये सब कुछ प्रभु जी हम आपकी कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you so much. You also know? No, I'm not. Gracias.